بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے لیکچر میں ہم بنزین کے فزیکل پراپرٹی اور جو اس سے بڑا امپورٹنٹ اور بہت زیادہ سمجھنے والا ٹاپک ہے وہ ہے اسٹرکچر آف بنزین. اور فزیکل پراپرٹی تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ تھوڑی سی ہے. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ ان دا ایبسنس آف پولر سبسٹیٹیوٹ ایرینز آر ٹیپیکل آف ہائیڈرو کاربن. مطلب آپ دیکھیں نا، یہ C6H6 ہے تو یہاں سے تو چلے اندازہ ہوتا ہے کہ دو ایلیمنٹ ہی ہیں، کاربن ہے اور ہائیڈروجن ہے. تو اس کی وہ ساری پراپرٹی ایسی مطلب لگتی ہیں کہ جیسے یہ مطلب عام جو ہائیڈرو کاربن ہے اس کی طرح اس کی ساری پراپرٹی ہے. مطلب کاربن اور ہائیڈروجن کے درمیان الیکٹرونیگیٹیوٹی کا ڈفرنس چونکہ یہاں بہت کم ہے تو اسی وجہ سے آلموسٹ اٹ از نان پولر. لو میلٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ، جب یہ نان پولر ہے تو جیسے آپ لوگ پہلے سے جانتے ہیں کہ نان پولر میں کون سی فورسز انٹر مالیکولر فورسز ہوتی ہے، لنڈن ڈسپرشن فورسز ہوتی ہیں. اسی وجہ سے نان پولر کی وجہ سے لو سالوبلٹی ان پولر سالوینٹ لائک واٹر کے اندر یا پولر سالوینٹ کے اندر اس کی سالوبلٹی یا تو بالکل نہیں ہوتی یا بالکل معمولی سی ہوتی ہے. لیکن جو ہمارے پاس نان پولر سالوینٹس ہوتے ہیں، دوسرے سالوینٹس ہوتے ہیں، ان میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اٹ از سالوبل، یہ سالوبل ہے. اگلی چیز آتی ہے اسٹرکچر. اگر ہم پرانی جو کیمسٹری کی بک ہے اس چیز کو ہم تھوڑا سا دیکھیں تو ایک لحاظ سے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ اس چیز کو نوٹ کر لیں یا اس چیز کو آپ دیکھیں تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پاس جو بنزین ہے اس کے اندر دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو آتی ہیں وہ یہ ہے کہ بنزین از جسٹ لائک ہائیڈرو کاربن، الکین اور الکین کی طرح یہ ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اس میں یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ نہ تو یہ الکین ہے نہ یہ الکین ہے. اس طرح کی کوئی مطلب اس کی وہ نہیں ہے، پراپرٹی بھی نہیں ہے اور اس کی اسٹرکچر بھی اسی طرح نہیں ہے. تو نہ الکین کی طرح ہے اور نہ الکین کی طرح ہے. اسی وجہ سے نہ یہ الکین الکین اور الکین اگر آپ جرنل فارمولے بھی اپلائی کرتے ہیں تو یہ اسی طرح بھی نہیں ہے. تو یہ چیز بڑی عجیب سی لگتی ہے. جو بلکہ شروع میں جو سینٹسٹ تھے انہوں نے اسٹریٹ چین اسٹرکچر بھی سجیسٹ کیے کہ شاید بنزین کی جو اسٹرکچر ہے وہ اسٹریٹ ہوگی. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، اس کی جو اسٹرکچر ہے وہ اسٹریٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ سارے اسٹریٹ چین اسٹرکچر جو تھے وہ مختلف ایکسپیریمنٹ کی بنا پر یا مختلف ایکسپیریمنٹ کی بیس پر سارے اسٹرکچر ریجیکٹ ہو گئے. پھر بعد میں پتہ چلا، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیکیول ایک سینٹسٹ کا نام ہے، اس نے کچھ اسٹرکچر سجیسٹ کر لیے اور کیکیول نے جو اسٹرکچر سجیسٹ کیے اس کے مطابق یہ تھا کہ بنزین جو ہے اس کی اسٹرکچر جو ہے وہ کون سی ہے، وہ ہیگزاگونل ہے اور الٹرنیٹ اس میں پائی بانڈس ہوتے ہیں. تو کیکیول کی اسٹرکچر جو ہے وہ مطلب بہت زیادہ چلتے رہے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بنزین کی جو اسٹرکچر ہے یعنی کیکیول جو اسٹرکچر ہے تو کیکیول اسٹرکچر میں پائی بانڈس ہوتے ہیں. جیسے ہم بنزین کے لیے جو اسٹرکچر بناتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ایک ہیگزاگونل سائیکلک اسٹرکچر بنا کر اس کے اندر 3 الٹرنیٹ پائی بانڈ بنا لیتے ہیں. تو ان اسٹرکچر کو ہم کیکیول اسٹرکچر کہتے ہیں، جہاں جیسے یہ اس لائن میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. بٹ بنزین کی جو اسٹرکچر تھی دیٹ واز ناٹ اے کیکیول اسٹرکچر. بنزین کی اسٹرکچر جو تھی وہ کیکیول نہیں تھی. وہ کون سی تھی؟ وہ اس میں یہ تھا کہ کیکیول اسٹرکچر نہیں تھی بلکہ کون سی اسٹرکچر تھی؟ کیکیول اسٹرکچر کے اوپر آبجیکشن کیا گئی. آبجیکشن یہ آ گئی کہ اگر بنزین کے اندر 3 الٹرنیٹ پائی بانڈز بھی ہے تو اس میں تو ایڈیشن بہت آسانی سے ہو سکتی ہے، اور ایڈیشن اگر آسانی سے ہوتی ہے تو پھر اس میں ایڈیشن ریئیکشن ہونے چاہیے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، بنزین جو ہے اس کے اوپر یہ آبجیکشن آ گیا کہ بنزین جو ہے وہ ایڈیشن بڑی مشکل سے کرتی ہے اور سبسٹیٹیوٹ جو ہے وہ بڑی آسانی سے کرتی ہے. تو کیکیول کی اسٹرکچر اسی وجہ سے پھر ریجیکٹ ہو گئی. اب اس میں ایک بڑی جو امپورٹنٹ ایک چیز ہمارے پاس آتی ہے نا، وہ یہ کہ جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بنزین میں
हम 3 पाई बॉन्ड बनाते हैं, और उन पाई बॉन्ड्स की वजह से डबल बॉन्ड भी बेंजीन में है, सिंगल बॉन्ड भी है। तो डबल बॉन्ड का डिस्टेंस जो है वो अलग होता है, बॉन्ड डिस्टेंस अलग होता है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो अलग होता है। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम बेंजीन के इस चीज़ को नॉमिनेट कर ले, इस चीज़ को हम देखें ना कि इसमें डबल बॉन्ड भी है और इसमें जो है ना वो ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ये चीज़ बड़ी अजीब सी वो लगती है कि मिसाल के तौर पर अगर हम इस चीज़ को करेंगे कि इसमें डबल बॉन्ड भी है और इसमें सिंगल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड का लेंथ अलग होता है, सिंगल बॉन्ड का लेंथ कुछ और होता है। ठीक है, तो अलग अलग डिस्टेंस हमारे पास आना चाहिए। लेकिन जब हमने एक्स रेज एनालिसिस हो गई या इसी तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से इसके बॉन्ड लेंथ फाइंड की गए, तो इसमें ये चीज़ सामने आ गई कि तमाम बॉन्ड लेंथ जो है ना वो इक्वल लेंथ के हैं। अब ये चीज़ बड़ी एक मतलब समझने वाली थी, बड़ी अजीब सी थी कि बेंजीन के अंदर पाई डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। सिंगल बॉन्ड का लेंथ कुछ और होता है, डबल बॉन्ड का कुछ और होता है। लेकिन एक्स रेज एनालिसिस के बाद ये सारी चीज़ें सामने आ गई कि नहीं, बेंजीन के अंदर तो जितने बॉन्ड हैं वो सारे बॉन्ड डिस्टेंस बराबर है, इक्वल है, और वो ना डबल बॉन्ड के बराबर है, ना सिंगल बॉन्ड के बराबर है। सिंगल बॉन्ड से वो बॉन्ड डिस्टेंस शॉर्ट है और डबल बॉन्ड से ज़्यादा है। इसका मतलब यह बनता है कि बेंजीन के अंदर आम आम डबल या सिंगल बॉन्ड की तरह बॉन्ड्स नहीं है। वो एक आप समझ लें कि बेंजीन की एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं। ठीक है, इन बेंजीन ऑल द कार्बन बॉन्ड्स आर नोन टू बी ऑफ इक्वल लेंथ, सो देयर आर नो डबल बॉन्ड इन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। क्योंकि वो जितने बॉन्ड बेंजीन के अंदर 6 बॉन्ड हैं और सबका बॉन्ड डिस्टेंस बराबर है, वो ना सिंगल बॉन्ड के बराबर आता है और ना वो डबल बॉन्ड के बराबर है। तो इसका मतलब ये बनता है कि बेंजीन के अंदर कोई स्पेशल टाइप अरेंजमेंट है, कोई स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है। तो ये चीज़ जो है ना हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम बेंजीन की ये सारी चीज़ें हम समझ लें कि बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड की तरह के बॉन्ड नहीं है, उसकी अपनी एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें, यहाँ पर ये पेज मैंने लिया है पंजाब टेक्स्ट बुक से, और इसमें हम ये शो कर रहे हैं कि बेंजीन के अंदर सारे बॉन्ड जो है वो अपनी जगह फिक्स नहीं है। यानी अगर बेंजीन के बॉन्ड आप फॉर एग्जांपल आप अपनी जगह फिक्स कर ले, तो फिक्स होने के बाद इससे एक कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं 135 साइक्लोहेक्सा ट्राइइन, 135 साइक्लोहेक्सा ट्राइइन। और बॉन्ड की पोजीशन जब हम अलॉट कर लेते हैं, तो बॉन्ड की पोजीशन की अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने डबल बॉन्ड फिक्स कर लिया। यानी ये डबल बॉन्ड अब लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज नहीं है, ये आगे पीछे नहीं जा सकते। इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कार्बन के दरमियान फिक्स्ड है और ये लोकलाइज्ड है। इस बेंजीन को हम कहते हैं कि ये हाइपोथेटिकल बेंजीन है, क्योंकि एक्चुअल बेंजीन इस तरह नहीं है। बेंजीन के अंदर कभी भी ये डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड फिक्स नहीं होते, ये डीलोकलाइज होते हैं। लेकिन हम ये सपोज कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि चले अगर ये बॉन्ड हम फिक्स कर लें तो बेंजीन का नाम बन जाएगा 135 साइक्लोहेक्साट्राइइन, और इसी को हम हाइपोथेटिकल बेंजीन का नाम देते हैं। हाइपोथेटिकल हाइपोथेसिस से निकला है, जैसे ये एक्चुअल नहीं है। अब इसकी हम निकालेंगे एनर्जी ऑफ हाइड्रोजनेशन। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजनेशन हम कैसे निकालते हैं? देखिए, अगर हम साइक्लोहेक्सीन लें और इसके अंदर 1 मोल हाइड्रोजन की एडिशन कर ले तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। और कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये अगर आप राउंड फिगर में लेते हैं तो ये तकरीबन 120 किलो जाउल, यानी 1 मोल हाइड्रोजन की एडिशन से जब बेंजीन के अंदर होती है और साइक्लोहेक्सेन बनता है तो ऑलमोस्ट 120 किलो जाउल एनर्जी रिलीज होती है। ये आप देखें, ये 13 साइक्लोहेक्सा डाइईन है। इसमें भी अगर हम जैसे अगर आप ये साइक्लोहेक्सीन लेते हैं तो इसमें 1 मोल हाइड्रोजन की एडिशन होती है। अगर आप ये 13 साइक्लोहेक्सा डाइईन लेते हैं तो इसमें 2 मोल की एडिशन हो जाएगी, फिर साइक्लोहेक्सेन बनेगा। तो अगर 1 मोल की एडिशन से 120 किलो जाउल एनर्जी रिलीज होती है तो 2 मोल से जाहिर बात है इसके डबल रिलीज होगी। ठीक है ना? तो इसी तरह अगर इसका आप डबल लेते हैं तो डबल एनर्जी आपके पास आ जाएगी 239
या 240 आ जाएगी। अगर आपने 120 के हिसाब से लिया है तो 240 आ जाएगी किलो जूल इससे। इसी तरह अगर ये हम लेते हैं हाइपोथेटिकल बेंजीन, एक्चुअल बेंजीन नहीं, हाइपोथेटिकल बेंजीन हम लेते हैं, तो हाइपोथेटिकल में फिर 3 मोल की हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी और साइक्लोहेक्सेन बनेगा। अब अगर 1 मोल से एनर्जी 120 किलो जाउल या 119.5 किलो जाउल रिलीज होती है तो 3 मोल से इससे थ्राइस रिलीज हो जाएगी। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 358.5 या 360 किलो जाउल एनर्जी रिलीज हो जाएगी। इतनी एनर्जी हाइपोथेटिकल से। लेकिन जो हमारे पास एक्चुअल बेंजीन है, जो ऑब्जर्व्ड बेंजीन है, जिसमें बॉन्ड जो है वो लोकलाइज नहीं है, उसमें जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो एनर्जी कितनी रिलीज होती है? 208 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। अब ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि देखिए, अगर बेंजीन की इस तरह की स्ट्रक्चर होती या इस तरह का फार्मूला होता कि पाई बॉन्ड फिक्स होते, तो फिर तो जाहिर ही बात है कि ये बेंजीन और इस बेंजीन में फ़र्क नहीं होना चाहिए। इससे जो एनर्जी जितनी रिलीज होती है इतनी एनर्जी इससे भी रिलीज होनी चाहिए। लेकिन जो ऑब्जर्व, जो एक्चुअल बेंजीन है, उससे एनर्जी कम रिलीज हो रही है, और जो हाइपोथेटिकल बेंजीन हमने लिया है उससे एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है। और दोनों का डिफरेंस क्यों आ रहा है? 150.5 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस आ रहा है। यानी इसका मतलब है कि बेंजीन 150.5 किलो जूल के एनर्जी के लिहाज से स्टेबल है। कितना ज़्यादा वो स्टेबल है। अब असल चीज़ जो है वो ऑब्जर्व्ड बेंजीन या एक्चुअल बेंजीन और हाइपोथेटिकल बेंजीन के एनर्जी में डिफरेंस की असल वजह क्या है? वो ये कि हाइपोथेटिकल में बॉन्ड फिक्स है, लोकलाइज्ड है, जबकि जो एक्चुअल बेंजीन है या ऑब्जर्व्ड बेंजीन है उसके अंदर जो पाई बॉन्ड है वो फिक्स नहीं है। फिक्स ना होने की वजह से, डीलोकलाइजेशन होने की वजह से ये बॉन्ड, ये एनर्जी इसकी कम आ रही है। अब यहाँ पर अगली चीज़ हमारे पास आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट में भी यही चीज़ तकरीबन आगे इन्होंने एक्सप्लेन करके आपको बताई है। अब मॉलिक्यूलर ट्रीटमेंट के मुताबिक ये होता है कि बेंजीन के जितने कार्बन हैं, जैसे बेंजीन के अंदर 6 कार्बन हैं, तो हर एक कार्बन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिड है। sp2 हाइब्रिड है, जैसे ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। और जो एक ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिड है, जो यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है। So यहाँ पे आप देखें, each carbon is in a state of sp2 hybridization because each carbon atom is attached to 3 atoms combining of 6 such 6 structures and overlap of 6 hydrogen atom। अब देखें, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 वाले कार्बन के sp2 के साथ sp2 ओवरलैपिंग कर लेगा और सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। दूसरा sp2 वो 7 वाले के sp2 के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा, और तीसरा sp2 जो है वो हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। और हर एक कार्बन के पास एक sp अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रह जाता है। अब जितने हमारे पास ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स होते हैं, ये वाले, तो इन अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल की वजह से ये कुछ ऑर्बिटल, कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर कुछ नीचे आकर एक शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। बेंजीन के रिंग दरमियान में सैंडविच हो जाती है और इसी तरह यूँ समझ ले कि एक डीलोकलाइज फॉर्म बन जाती है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं या यहाँ आप पढ़ सकते हैं कि एन ओवरलैप ऑफ 6 हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस द फॉलोइंग सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ बेंजीन। यानी बेंजीन कार्बन जब कार्बन के साथ ओवरलैपिंग कर लेता है, ये वाली ओवरलैपिंग, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग हो जाती है, ये भी सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। ईच p orbital in a position to overlap in parallel manner with neighboring p orbital to give a continuous sheet of negative charge as shown in the figure। यहाँ पर जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है वो ऊपर और नीचे ओवरलैपिंग करके एक कंटिन्यूस शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं या नेगेटिव चार्जेस बना लेते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कभी अपनी जगह पर रहते नहीं हैं, ये यूं यूं करके ना फिर आगे डीलोकलाइजेशन करते हैं। और इनकी डीलोकलाइजेशन की वजह से बेंजीन के अंदर कोई फिक्स सिग्मा, कोई फिक्स पाई बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं। तो डीलोकलाइजेशन की वजह से वो रोटेशन करते हैं। और यही वजह है कि जब हम बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम उसमें एक सर्कल बना लेते हैं
वो सर्कल बेसिकली इन 6 इलेक्ट्रॉन को शो करता है कि वो 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो डी लोकलाइजेशन, और इसी डी लोकलाइजेशन की वजह से इस बेंजीन को स्टेबिलिटी मिलती है, या बेंजीन जो है वो बाकी स्ट्रक्चर के मुकाबले में जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो असल जो स्टेबिलिटी है वो किस वजह से मिलती है, वो इस डी लोकलाइजेशन ऑफ पी ऑर्बिटल की वजह से मिल जाती है। It results in extensive delocalized pi bonding, which spread over all the carbon nuclei of benzene. Delocalization of p orbital over the entire ring produces sandwich-like structure of benzene and decrease the energy of molecule. और इस delocalization की वजह से वो जो आपने पिछले स्लाइड में पढ़ा है कि बेंजीन इज 150 किलो जूल या 152 किलो जूल मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू रियल बेंजीन या एक्चुअल बेंजीन, तो वो स्टेबिलिटी जो है वो बेसिकली इसकी वजह से आ जाती है। तो असल एक और स्लाइड में आप देखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन की असल वजह क्या होती है वो भी आप लोग जानते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ पर लेते हैं साइक्लोहेक्सीन, 1 मोल की एडिशन हो जाए तो ये, वैसे अगर नई बुक में आप देखें तो उन्होंने राउंड फिगर में लिखा है 120 या 119.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है और साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अगर हम इसी तरह 13 साइक्लोहेक्साडाइन लेते हैं तो इसके ट्वाइस, इसमें 2 मोल की एडिशन होती है और इसी तरह एनर्जी इसके मुकाबले में ट्वाइस रिलीज होगी। अगर हम ये हाइपोथेटिकल बेंजीन लेते हैं, ये वाला 13 साइक्लोहेक्साट्राइन लेते हैं तो इसमें 3 मोल की एडिशन हो जाएगी और इसके मुताबिक इसकी एनर्जी ट्रिपल हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड बेंजीन है उससे एनर्जी 208 रिलीज हो रही है। इसका मतलब ये बनता है कि जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड बेंजीन है इसकी स्टेबिलिटी की वजह जो है वो असल में डी लोकलाइजेशन होती है, कि बेंजीन के अंदर डी लोकलाइजेशन हो रही है और डी लोकलाइजेशन की वजह से बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो जो है वो ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी की वजह है वो ये आती है। इसमें से अब देखिए आप, एक और छोटा सा टॉपिक है रेजोनेंस है, या रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन क्या होती है। द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इज कॉल्ड रेजोनेंस। ये रेजोनेंस की डेफिनेशन है कि बेंजीन के अंदर हमारे पास सिंगल स्ट्रक्चर नहीं बल्कि कई स्ट्रक्चर जो है वो बनने के चांसेस होते हैं। और ये भी याद रखना है कि ये रेजोनेंस का प्रोसेस सिर्फ बेंजीन में नहीं है, ये बाकी मालिक्यूल के अंदर भी, बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी है। यानी अगर हमारे पास जहाँ पर डीलोकलाइजेशन होती है वहाँ पर रेजोनेंस के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी सिंगल स्ट्रक्चर से हम वो सारी चीज़ें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बल्कि कई स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल बनती हैं। इसमें आप देखेंगे कि कुछ स्ट्रक्चर को किक्यूल का नाम दिया गया, कुछ स्ट्रक्चर को डेवर स्ट्रक्चर का नाम दिया गया, लेकिन ये सारी जो स्ट्रक्चर ये आपको बता रही है ये सारी पॉसिबल स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर इनमें कोई भी नहीं है। अब अगली डायग्राम में आप देखें कि किक्यूल स्ट्रक्चर कौन सी है, डेवर स्ट्रक्चर कौन सी है, डिफरेंट पेयरिंग स्कीम कैसे बनती है, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि देखिए पी ऑर्बिटल अगर यहाँ पे अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर ले तो पाई बॉन्ड इधर बन जाएंगे, इन दोनों कार्बन कर ले तो पाई बॉन्ड इधर बन जाएंगे, इन दोनों कार्बन के अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ले तो पाई बॉन्ड इधर बन जाएगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इन दोनों कार्बन के पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना ले, फिर इन दोनों कार्बन के इन दोनों के, तो ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल होगा कि अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल 1 कार्बन का और 4 कार्बन का ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करके ये पाई बॉन्ड बना ले, ये फिर दोनों पी ऑर्बिटल, वो कार्बन एटम अपने अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेंगे और पाई बॉन्ड बना लेंगे, ये भी बना सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इस कार्बन का और इस कार्बन का, यानी 2 और 5 कार्बन का जो पी कार्बन एटम है वो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करके यहाँ पर पाई बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पर भी। तो ये सारे स्ट्रक्चर क्या है, ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है, इसमें रियल स्ट्रक्चर कोई भी नहीं है। रियल स्ट्रक्चर इन सब का एवरेज स्ट्रक्चर है। क्या है? एवरेज स्ट्रक्चर है। इन स्ट्रक्चर को हम दोनों को हम किक्यूल स्ट्रक्चर कहते हैं और इन स्ट्रक्चर को डेवर स्ट्रक्चर कहते हैं। इनमें यह कि किक्यूल स्ट्रक्चर थोड़े से ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ये रियल स्ट्रक्चर के ज़्यादा करीब है। डेवर स्ट्रक्चर में ये जो पाई बॉन्ड आपको नज़र आ रहे हैं ये बहुत बड़े हैं, इतने बड़े जो होते हैं ना पाई बॉन्ड, वो कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से ये स्ट्रक्चर हमारे लिए ज़्यादा जो है
وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے یہ ہے، لیکن یہ بھی ایکچوئل اسٹرکچر نہیں ہے، کیونکہ ایکچوئل اسٹرکچر وہ ہے کہ جس میں وہ پائی الیکٹران اوپر اور نیچے جا کر ایک شیٹ کی شکل میں ڈی لوکلائزیشن کرتے ہیں. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر ہمارے پاس